Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yousaf. Today we are going to start the first endocrine gland, the pituitary gland, the second name of which is hypophysis. Hypophysis. It is also known as hypophysis. General aspect we will talk about, but before that, an ayah from Holy Quran. That is, I have selected the ayah from Surah An-Nur, ayat number 19. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina yuhibbuna an tashihal fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innal ladhina, बेशक वो लोग युहिब्बूना जो पसंद करते हैं, अनतशियल फाहिशतो के बेहयाई फैल जाए, फिर लदीना आमनू ईमान वाले लोगों में। तर्जमा आसान से क्या हो जाएगा कि बेशक वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई आम हो जाए, फैल जाए, लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु यालमु, अल्लाह खूब जानता है, वान तुम ला तालमून, और तुम बिल्कुल नहीं जानते। एग्जैक्ट तर्जमा देख लें कि जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरज़ूमंद रहते हैं, ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा है कि जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरज़ूमंद रहते हैं, उनके लिए दुनिया व आखिरत में दर्दनाक अजाब हैं, और अल्लाह सब जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। इसकी तशरीह तो फिर टाइम नहीं है होता हमारे पास, लेकिन गौर कर ले कि ये बेहयाई फैलाने के ज़राए में कहीं हम इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। मेरे पास अगर कोई गंदा सा मैसेज आता है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो मैं पसंद कर रहा हूँ ना, बेहयाई को फैला रहा हूँ ना, तो मैं भी इस वईद का शिकार हूँगा। अल्लाह पाक समझ दे कि हमें गौर करना चाहिए, अल्लाह पाक हमें क्या कह रहे हैं कि बेहयाई फैलाने वालों के लिए, इस बात को पसंद करने वालों के लिए अल्लाह पाक दुनिया में अजाब का वईद दे रहे हैं, और आखिरत में अजाब तो है ही, और अल्लाह खूब जानता है कि कोई क्या कर रहा है। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक दे। So we are going to start the pituitary gland, the hypophysis, the physiology of that gland we are going to talk about, and its hormones. Now, then anatomically, physiological anatomy, we should know that the diameter, this is a small gland, and a diameter of about 1 centimeter, and weight of about only 0.5 to 1 gram. That is the weight of this pituitary, so small gland, and it lies in the base of the skull. There is a special cavity, a depression at the base of the skull. Anatomy, you must have seen that in the skull, that is, which is known as sella turcica. It is located in there. It lies in that sella turcica. This gland is as it is in the base of the skull, on which the brain is anatomically situated over it, and so it is connected to brain by a stalk which is known as pituitary stalk or hypophyseal stalk, or infundibulum भी उसको कह सकते हैं. So it is connected to brain at the hypothalamus by hypophyseal stalk or pituitary stalk उसको कह सकते हैं. It has got two parts. Pituitary gland has two parts. One is known as anterior pituitary or adenohypophysis. Hypophysis तो pituitary का नाम है. Adenohypophysis is the anterior pituitary, and the posterior pituitary is also known as neurohypophysis. ये दो इसके parts हैं. And there is a third part as well, but in human being it is avascular, and or it may be absent. If it is present, it is avascular. It doesn't produce any hormone. It is it has got no physiological action. So we are concerned with only anterior and posterior pituitary. In some lower animal, pars intermedia is active. It produces some hormones. This is the diagram. That is the anterior pituitary and posterior pituitary. Pars intermedia भी दिखाया हुआ है, pars intermedia, but in human being it is non-avascular. It is connected to hypothalamus by the pituitary stalk. This is the hypophyseal stalk. This is the pituitary. Now, the development of this pituitary gland, it has got two parts, and these two parts, they develop from the two different embryological areas.
that is adenohypophysis. It develops from pharyngeal epithelium. आपने embryology में पढ़ा होगा pharyngeal epithelium, pharyngeal pouches in the embryonic stage of the human beings. Pharyngeal pouches may it develops from a pouch from the pharyngeal epithelium. It invaginates in the form of a pouch which is known as Rathke's pouch. So adenohypophysis develops from the Rathke's pouch, and as it is a glandular cells, it has got the epithelioid cells, glandular cells. So that's why its name is adeno something referred to glands. So it is glandular cells are present there. Neurohypophysis, neuro, as the name is showing us, it is an outgrowth of the hypothalamus. Nervous system से outgrow करके आता है. ये नीचे से जाता है pharyngeal epithelium से, और posterior pituitary यो nervous system से आता है. Both they join together to form this structure which we call as pituitary gland. So neurohypophysis or posterior pituitary is an out of growth of the hypothalamus. So it is a nervous tissue, neural tissue. The cells which are known as pituocytes, they and the glial cells, उनके जो cells हैं वो nervous cells हैं, जो आपने neurons किस्म की चीज है. तो the cells और glial cells भी इसमें मौजूद हैं. So the posterior pituitary is nervous tissue. It is an outgrowth of the nervous tissue. Anterior pituitary hormones, there are several hormones produced from the anterior pituitary. Important हम 6-7 का नाम ले लेते हैं. Growth hormone, and then the thyroid stimulating hormone. Different cells, they produce different hormone. These are the important hormones from the anterior pituitary. Growth hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, ACTH, and then the melanocyte stimulating hormone, MSH, and then the gonadotrophic hormone. There are two gonadotrophic hormones. One is luteinizing hormone or LH. इसको मेल में ICSH भी कहते हैं, वहाँ प्रॉपर टाइम पे इसको हम एलेबोरेट करेंगे. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH. These both of them, LH and FSH, they are collectively known as the gonadotrophic hormones. Then there is the prolactin. This is the seventh hormone. Seventh hormone, growth 1, TSH2, ACTH3, and MSH4 and LH5 and FSH6. सेवंथ हार्मोन जो हमने लिस्ट किए हुए है प्रोलैक्टिन. इट इज सो ये 7 हार्मोन. द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज also was known as, now it is still known as, band master of the this orchestra of the endocrine glands. It controls the many other endocrine glands. इसके नाम बता रहे हैं ना. That is, you can see the thyrotrophic hormone, pituitary gland is producing TSH, which acts on the thyroid gland. It is producing the corticotropic hormone, which is acting on the adrenal cortex. It is producing the follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, which is acting on ovaries or pancreas. It also affects the pancreas as well. So the gonadotrophic hormone, they are acting on ovaries and testes. So it is controlling many other endocrine glands. So ये बाकी endocrine gland को भी control कर रहा होता है. देखेंगे individual endocrine gland को जब discuss करेंगे तो. So now these were the 7 important anterior pituitary hormones. And posterior pituitary hormone, you may be knowing that is the 2 hormones, they are named as posterior pituitary hormone. But both of these hormones are not produced by posterior pituitary. They are called as posterior pituitary because they are released from the posterior pituitary. Their production is from the hypothalamus. They are only stored and released from the posterior pituitary, so they are known as the posterior pituitary hormone. They are not produced in the posterior pituitary. They are produced in hypothalamus. We will talk about that when उस हार्मोन के हम डिस्कस करेंगे. They are produced in hypothalamus and they are only transported and stored in the posterior pituitary. They are released from the posterior pituitary. They are known as, so these are the 2 hormones जो वो इस तरह रिलीज होती हैं. They are oxytocin and the ADH, और उसका दूसरा नाम vasopressin भी है. At proper time हम इसको डिस्कस करेंगे. Now the cell types of cells in anterior pituitary, ये 7 किस्म के हार्मोन हमने anterior pituitary में हमने लिस्ट किए थे. There are many types of cells, उसको हम करते हैं. लेकिन ये जो H&E स्टेनिंग, आम रूटीन स्टेनिंग जो हम करते हैं, हेमाटोक्सिलिन इयोसिन स्टेनिंग जिसको हम कहते हैं, H&E स्टेनिंग, उसकी बेस पर हमने
तीन किस्म के सेल देखे हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सेल। एसिडोफिल्स जो एसिडिक स्टेन लेते हैं, यानी ई लेते हैं, ई इज द एसिडिक, इयोसिन एसिडिक स्टेन उसको कहते हैं। सो दे आर एसिडोफिल, दे आर नोन एज एसिडोफिल्स। इयोसिनोफिल भी कह सकते हैं, इयोसिन लेते हैं, लेकिन इयोसिनोफिल हमने चूंकि ब्लड के एक खास किस्म के सेल के ग्रेन्यूल जिसका इयोसिन लेते हैं उनका नाम इयोसिनोफिल रखा हुआ है, तो इनको आसानी के लिए हम एसिडोफिल कहते हैं। अदरवाइज दे आर आल्सो इयोसिनोफिलिक। सो एसिडोफिल ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, इन दो से, ये दो हार्मोन, उन सात में से ये दो हार्मोन जो है एसिडोफिल से प्रोड्यूस होते हैं। एंड बेसोफिल दूसरे जो बेसिक स्टेन लेते हैं, जिनका साइटोप्लाज्म में ज्यादातर बेसिक स्टेन ले लेते हैं। ये जो ट्रोफिक हार्मोन हमने लिस्ट किए हैं, ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, MSH, all these are produced by those basophilic cells। तो तीसरी, तो ये सारी हार्मोन तो हमारी साथ पूरी हो गई हैं। तीसरी किस्म के सेल जो क्रोमोफोब्स कहलाते हैं, क्रोमोफोब्स, एसिडोफिल्स, दे लव एसिडिक स्टेन। फिलिया मीन्स लव, फोबिया मीन्स हेटेड और रिपल्शन। So they are afraid of that chrome. They do not take any stain. They are known as chromophobes. No hormone is produced. So मेरे ख्याल में वो discarded cells हैं जो आस्ता destroy हो. But chromophobes are there. Pituitary की slide हम देते हैं, लेकिन they don't produce the hormone. So ये H&E staining है। लेकिन the special technique, स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निक से हमने और किस्म के सेल्स अलग अलग मार्क किए हुए हैं। स्पेशल, ये तो H&E स्टेनिंग वाले हम तीन किस्म के सेल्स हमने देखे थे सिंपल स्टेनिंग टेक्निक पे। स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक पर हमने फॉर एवरी हार्मोन अलग सेल हमने मार्क किया हुआ है। फॉर एवरी हार्मोन स्पेशल सेल। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स को हमने नाम दिया हुआ है सोमैटोट्रोफ्स। वो 30 to 40% ऑफ द पिट्यूटरी सेल्स हैं, एंड उनको सोमैटोट्रोफ्स कहते हैं। एंड कार्टिकोट्रोफ्स उनको कहते हैं जो ACTH प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दे आर नोन एज कार्टिकोट्रोफ्स, वो 20% ऑफ दी सेल्स हैं। देन थायरोट्रोफ्स हैं जो TSH पैदा करते हैं, थायरोट्रोपिन या TSH, दे आर नोन एज थायरोट्रोफ्स, वो थोड़े हैं, 3 to 5% है। एंड दी गोनेडोट्रोफ्स वो भी 3 to 5% है, जो FSH और LH पैदा कर रहे हैं। एंड लेक्टोट्रोफ्स जो प्रोलैक्टिन पैदा करते हैं। सो हमने स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक करके, ये देखें स्लाइड आगे आ रही है, स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक से हमने हर ग्रोथ, हर हार्मोन के लिए अलग अलग सेल आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमने सिर्फ नाम याद रखना है कि हमने सोमैटोट्रोफ्स, कार्टिकोट्रोफ्स, थायरोट्रोफ्स, गोनेडोट्रोफ्स एंड लेक्टोट्रोफ्स, ये 5 किस्म के सेल्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो ये डायग्राम, ये तो स्टेनिंग है, हमें इसको मजीद देखना नहीं है। फिजियोलॉजिकली हमें इतना पता होना चाहिए कि हर हार्मोन के लिए अलग हमने पिट्यूटरी सेल का आइडेंटिफाई किया हुआ है, इस पे स्टेन करके देखिए। Now this pituitary gland, it is connected to hypothalamus, जो हमने शुरू में डायग्राम में देखा था। Hypothalamus has got very important role in all the pituitary secretions. So hypothalamic control हम देखते हैं कि hypothalamus के साथ यहाँ पे अटैच करने का अल्लाह पाक ने क्यों रखा है, hypothalamus के साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। Hypothalamus controls almost all the anterior pituitary hormones, वो कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? हार्मोन पैदा करके कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी की हार्मोन्स के लिए कंट्रोलिंग हार्मोन पैदा करके भेजता है। तो हार्मोन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज सिक्रेटेड बाय अ सेल इनटू द ब्लड, ब्लड विल कैरी इट टू द साइट ऑफ एक्शन। सो हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिनको हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन भी, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन और हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन। अगर किसी हार्मोन को वो रिलीज कर रहे हैं तो रिलीजिंग हार्मोन कह देते हैं, किसी हार्मोन को इनहिबिट कर रहे हैं इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। दीज आर द हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, दे आर सिक्रेटेड इन द हाइपोथैलेमस, जहां जहां पे सेल्स हैं, स्कैटर्ड सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के डिफरेंट एरियाज पे ये पैदा होते हैं। लेकिन ये सारी हार्मोन्स दे आर, ये मीडियन एमिनेंस पे जमा होके दे आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड in the hypothalamus. They are neurons from the different parts of the hypothalamus. They secrete different releasing hormone and inhibitory hormone. These are the inhibitory releasing hormone, and they are carried by the nerve fiber to the part of the hypothalamus which is known as median eminence, जिसके साथ pituitary stalk लगा हुआ है।
तो मीडियन एमिनेंस पे ये स्टॉक लगा हुआ है, तो दे आर कैरीड वाया नर्व फाइबर रन कर रहे हैं, न्यूरॉन्स हैं, लेकिन मीडियन एमिनेंस पे वो रिलीज होते हैं एंड दे आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड से एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल के जरिए से एंटीरियर पिट्यूटरी को पहुंचते हैं, एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इन द मीडियन एमिनेंस एंड कैरीड बाय स्पेशल ब्लड वेसल्स, जिनको जो पोर्टल वेसल्स हैं, दैट इज इनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल। हाइपोथैलेमस से शुरू होते हैं और हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी में जाके दोबारा रीब्रांच करते हैं। आपको पता है पोर्टल वेसल वो होती है जिसके दोनों एंड्स पर ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग से शुरू होकर दोबारा ब्रांच करते हैं इन अनदर ऑर्गन। तो ये हाइपोथैलेमस की ब्रांचिंग से शुरू होके हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन लिए हैं and they are carrying it along the pituitary stalk and they release it in the anterior pituitary, वहां पे rebranching है। तो hypothalamo hypophyseal portal vessel के जरिए से all these releasing hormone are inhibitory hormone from the hypothalamus, they reach the anterior pituitary and they control the respective hormones। ये डायग्राम दिखा रही है डिफरेंट एरियाज पे द रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का एरिया है, और ये सारे न्यूरॉन लेके दे आर कमिंग टू द मीडियन एमिनेंस में वो रिलीज होंगे, दे विल बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ये ब्लड वेसल जो 2-3 ब्लड वेसल मिलकर हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल कहलाते हैं एंड दे रीब्रांच हियर इन द एंटीरियर पिट्यूटरी और रेस्पेक्टिव हार्मोन को रिलीज करेंगे या इनहिबिट करेंगे। तो हाइपोथैलेमस का वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल है ऑन द ऑल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। उसको हम जरा डिफरेंट हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन के इंपॉर्टेंट वालों के नाम भी हम लिस्ट कर लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन के लिए एक रिलीजिंग हार्मोन है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नाम समझ आ रहा है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक प्रोटीन है, 45 अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड है। ये इट कॉजेज द रिलीज, हाइपोथैलेमस में पैदा होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी में जाके सोमैटोट्रोफ्स, अब उन सेल का नाम हमने मालूम हो गया, सोमैटोट्रोफ्स को ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल को स्टिमुलेट करके इट विल कॉज द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन भी है, वो भी एक अमाइनो एसिड है, छोटा प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है 14 अमाइनो एसिड का, वो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। इसको सोमैटोस्टैटिन भी कह सकते हैं, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन, तो इट इज द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। अब आगे देखें थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पॉलीपेप्टाइड छोटा सा पॉलीपेप्टाइड है, कितना 3 अमाइनो एसिड है, सिर्फ 3 अमाइनो एसिड, छोटा सा पॉलीपेप्टाइड, 2 पेप्टाइड लिंकेजेस से बना हुआ। इससे ये भी मालूम हुआ ट्राइपेप्टाइड, इसके पेप्टाइड बांड तो 2 है लेकिन 3 अमाइनो एसिड है। तो पेप्टाइड है 3 अमाइनो एसिड का, TRH इसको कहते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये TSH को रिलीज करवाएगा। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, ये भी 41 अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक ACTH को रिलीज करवाएगा, प्रोड्यूस करवाएगा। और गोनेडोट्रोफिक रिलीज GN, ये इस ग्रोथ हार्मोन से अलग देखने के लिए इसको GN का है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन 10 अमाइनो एसिड का है, विच विल कॉज द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। वो कौन कौन से? LH और FSH, उनका काम है। और प्रोलेक्टिन के लिए ये खास बात है, प्रोलेक्टिन के लिए इंपॉर्टेंट वाला रिलीजिंग हार्मोन नहीं है, इनहिबिटरी हार्मोन है, PIH। ये तो RH ग्रोथ हार्मोन का भी IH भी था, लेकिन इसके लिए प्रोलेक्टिन के लिए PIH, प्रोलेक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है। वो एक्चुअली डोपामीन है, वो कहीं हमने डोपामीन का जिक्र किया था ना, इसका कैटेकोलामीन की प्रोडक्शन में डोपामीन का भी एक स्टेप आता है, तो ये भी डोपामीन है। तो प्रोलेक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये डिफरेंट हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस जो एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसको हम देखेंगे कि कैसे आगे कंट्रोल करते हैं। तो हाइपोथैलेमस has got the control over the all the anterior pituitary hormone through hormones, हार्मोनल कंट्रोल है। हाइपोथैलेमस अपने ये हार्मोन पैदा करता है और ऑल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन उनको रिलीज करवाने या इनहिबिट करवाने के लिए इसका रोल होता है। कब रिलीज करवाता है, कब इनहिबिट करवाता है, ये तो हम एट द प्रॉपर टाइम देखेंगे। ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज होनी है, या ACTH को प्रोड्यूस करने के लिए CRH कब रिलीज, कब इनहिबिट करनी है, वो तो हम देखेंगे। बट हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है इसीलिए ऑल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को। और स्पेशल खास बात जो आपने याद रखनी है, बाकी हार्मोन्स के लिए ज्यादातर रिलीजिंग हार्मोन इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोलेक्टिन के लिए
इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखेंगे, इसकी अहमियत क्या है ये हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे। प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मिल्क प्रोडक्शन। इसकी अहमियत प्रॉपर टाइम पे देखेंगे कि ये क्या बात है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के मतलब आपको बता दें, ज़ाहिर है कि हमने यही हार्मोन हमने डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इन हार्मोन में से ग्रोथ हार्मोन को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, उसके फंक्शंस और उसकी रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन एटसेट्रा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कंट्रोल ऑफ एक्शन, जो हमने जनरल बातें की थी उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा ग्रोथ हार्मोन पर होगा। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो इसके कमेंट्स में आप क्वेश्चन डाल दें। मैं इंशाल्लाह ताला एक सेशन रखूंगा मुख्तलिफ लेक्चर्स के सवालों के जवाब देने के लिए, एक अलग सेशन, एक लेक्चर रख लेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा लेक्चर। आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।